کراچی سے خیبر تک کے احوال میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ گوجرا میں ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل میں تصادم، 2 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ حادثے میں ایک خاتون بھی شدید زخمی ہوئی۔ سیالکوٹ میں نالے سے نامعلوم شخص کی بوری بند لاش برآمد، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس کے مطابق لاش پرانی ہونے کے باعث ناقابل شناخت ہو چکی ہے، تاہم تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ گجرات میں چوری کے الزام پر بااثر زمینداروں نے گجرات میں چوری کے الزام پر بااثر زمینداروں نے نوجوان کو الٹا لٹکا دیا، سڑک پر ہی عدالت لگا لی، بہیمانہ تشدد کا بھی نشانہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس پر 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ چنیوٹ میں زہریلی دہی کھانے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق 2 بچوں کی حالت تشویشناک ہے۔ صادق آباد میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے موبائل فون کے ٹاور سے بیٹریاں چوری کرنے والے گینگ کے 4 اراکین کو گرفتار کر لیا۔ لاکھوں روپے مالیت کی بیٹریاں اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ چشتیہ میں جانوروں کی آلائشوں سے مزر صحت نشتر اسپتال میں سیکیورٹی گارڈ نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی۔ بس حادثے میں زخمی ہونے والے تاجر کا 50 تولے سونا اور نقدی واپس کر دی۔ سکھر میں کچے کے علاقے میں 2 گروپوں میں تصادم سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کے بعد کشیدگی برقرار، پولیس کا مختلف علاقوں میں آپریشن جاری۔ دیربالا میں پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائی کر کے 63 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ سوابی میں کسانوں اور کونسلرز کا مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاجی مظاہرہ، مطالبات منظور نہ ہونے پر پشاور کی جانب مارچ کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ دیربالا میں گردوں کے مرض میں مبتلا نوجوان زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا، غربت کے باعث علاج ممکن نہیں، جمع پونجی بھی خرچ کر ڈالی، بے بس نوجوان کی نگاہیں کسی مسیحا کے منتظر۔ صحبت پور شہر ضلعی انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث مسائلستان بن گیا۔ غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے شہر کی صورتحال کے بارے میں جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ دکئی میں پیرامیڈیکل اسٹاف کا مطالبات کی منظوری کے لیے چوتھے روز بھی احتجاجی مظاہرہ جاری، اسپتالوں میں دور دراز سے آئے مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، سب سے پہلے رخ کریں گے صوبہ پنجاب کا۔ گوجرا میں ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق جبکہ ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ افسوسناک حادثہ ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں پیش آیا، جس میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق جبکہ خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ زخمی خاتون کو تشویشناک حالت کے پیش نظر الائڈ اسپتال فیصل آباد منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں فلک شیر، اقرار حسین، کمسن بچے محمد رمضان علی اور علی شبہ شامل ہیں، جن کی عمریں 4 سے 6 سال کے درمیان بتائی گئی ہے۔ متاثرہ خاندان کا تعلق ٹوبہ ٹیک سنگھ کے نواحی گاؤں سے ہے۔ بدقسمت افراد السو موٹر سائیکل پر فیصل آباد جا رہے تھے کہ سامنے سے آنے والی تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے ٹکر دے ماری۔ ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے ٹریکٹر ٹرالی کو تحویل میں لیتے ہوئے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔
भक्कर में मुख्तलिफ हादसात में मां बेटे समेत 3 अफराद जाँ भाग जबकि बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। एक हादसा भक्कर कसूर रोड पर पेश आया जहां ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मां बेटा मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरा हादसा बहल रोड पर पेश आया जहां कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही दम तोड़ गया जबकि एक शख्स जख्मी भी हुआ। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। सियालकोट का रुख करेंगे जहां नाले से बोरी बंद लाश बरामद होने पर इलाके में खौफो हिरास फैल गया है। पुलिस का कहना है कि लाश पुरानी होने के बायस नाकाबिले शनाख्त हो चुकी है, ताहम तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। थाना सदर के इलाका दबुर्जी मलिया में नाले से नामालूम शख्स की बोरी बंद लाश बरामद होने पर इलाके में खौफो हिरास फैल गया है। इत्तला मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल की लाश काफी पुरानी है जिसे नामालूम मुल्जिमान बोरी में बंद करके नाले में फेंक कर फरार हो गए थे। कई रोज गुजरने के बायस लाश नाकाबिले शनाख्त हो गई है जबकि नामालूम मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब लाश की शनाख्त के लिए अहले इलाका की जानिब से मसाजिद में ऐलानात भी कराए गए। गुजरात में चोरी के इल्जाम पर में बासर जमींदारों ने नौजवान को उल्टा लटका दिया। सड़क पर ही अदालत लगाते हुए बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। वजीर आला पंजाब के नोटिस पर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात के नवाही गांव लधा में 62 जमींदारों ने चोरी का इल्जाम आयद करके नौजवान जाहिद इकबाल को पकड़ लिया। सड़क पर ही अदालत लगाते हुए उसे उल्टा लटका दिया। 62 जमींदारों ने नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। 62 जमींदारों के मुताबिक जाहिद इकबाल घरों और दरगाहों से चोरियां करने में मुलव्विस है और इसे रंगे हाथों पकड़ा है। दूसरी जानिब वरसा का कहना है कि पुलिस को शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की मगर कोई नोटिस नहीं लिया गया। की हालत गैर हो गई जिस पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मुतासरा अफराद में एक खातून और 2 बच्चे भी शामिल हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों बच्चों की हालत तशवीशनाक है, ताहम वो उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सादिकाबाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन से टावर्स से बैटरियां चोरी करने वाले गैंग के 4 अफराद को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की बैटरियां और असलहा बरामद कर लिया। सादिकाबाद के इलाके आरिफ टाउन में पुलिस ने मोबाइल टावर पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए अलसुबाई गैंग के 4 मुल्जिमान को रंगे हाथों असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान की निशानदही पर 10 लाख रुपए से ज्यादा की मालियत से बैटरियां, सेल और दीगर सामान भी बरामद किया गया है। मुल्जिमान के कब्जे से एक कार भी बरामद की गई है। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने मोबाइल कंपनियों के जाली कार्ड्स बना रखे हैं। वो टावर में दाखिल होने के लिए इन कार्ड्स को इस्तेमाल करते थे जिसके बाद असलहे के जोर पर बैटरियां और दीगर सामान चोरी कर लिया जाता। जबकि मुल्जिमान ने यह भी इंकशाफ किया है कि अक्सर वारदातें टावर इंचार्ज की मिली भगत से सर अंजाम पाती थी। उन्होंने मजीद बताया कि टावर इंचार्ज गार्ड्स को किसी काम से भी भेजकर हमें चाबियां फराहम करते थे जिसके बाद वारदात की जाती। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों गुजरात, शेखुपुरा, मुल्तान और फैसलाबाद में चोरियां करते थे। बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में जानवरों की आलाइशों से मुजरे सेहत घी बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। फैक्ट्री को सील करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीओ जफर हयात की हिदायत पर जिले इंतजामिया ने चिश्तिया में एक मकान पर छापा मारा जहां मुजरे सेहत घी तैयार किया जा रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर ने जाली घी और दीगर सामान कब्जे में लेकर फैक्ट्रियों को सील कर दिया और गिरफ्तार मुल्जिम को थाना सिटी चिश्तिया पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान अरसे दराज से इस मकरू और घिनौने कारोबार से मुंसलिक थे और मुर्गियों की चर्बी और अंतड़ियों से इंतहाई मुजरे सेहत घी बनाकर फास्ट फूड, शॉर्मा और दीगर होटल्स पर सस्ते दामों सप्लाई करते थे। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे हवालात में बंद कर दिया। शेखुपुरा में फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले पानी और धुएं के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और रोड ब्लॉक कर दी।
शेखुपुरा में शरकपुर रोड पर वाक़ फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले पानी और धुएं के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने मेन शाहराह पर टायर जलाकर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं और आलूदा पानी ने जीना दो भर कर रखा है। बदबू और ताफुन के बायस सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, जबकि आलूदगी के बायस बच्चे और बूढ़े दमा समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इत्तला मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर भी मौके पर पहुंच गए। एनओसी न होने पर उन्होंने फैक्ट्री को सील कर दिया। झंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों के लवाहिकीन की जानिब से नारवा सलूक के खिलाफ नर्सिस ने हड़ताल कर दी, जिसके बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। झंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में गुज़िश्ता रोज शहरी मोहम्मद सईद की अहलिया तिब्बी इमदाद के दौरान जाँ भाग हो गई थी, जिसके बाद मोहम्मद सईद ने मेडिकल इमरजेंसी में तोड़ फोड़ की। इस दौरान शीशा लगने से 2 नर्सें जख्मी हो गई। सरापा एहतजाज नर्सिस का कहना था कि मोहम्मद सईद ने न सिर्फ इमरजेंसी में तोड़ फोड़ की बल्कि उनके साथ हितकामेज रवैया भी इख्तियार किया। उनका कहना था कि जब तक मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज नहीं किया जाता, काम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी। पैरामेडिकल स्टाफ ने भी नर्सिंग स्टाफ से इजहार यकजहती के लिए तमाम शोबाजात में काम बंद कर दिया। दूसरी जानिब नर्सिस की हड़ताल के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची से खैबर तक के अहवाल से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप वक्त न्यूज़ के साथ हैं।